Hello, dear students. Welcome to Educational Corner. Today we are going to start with chapter North, South, East, West from Unit 3 Dreams and Discoveries from our class 7th English NCERT book, that is Purvi. We are going to start with chapter North, South, East, West. So, as the name suggests, the story is about our country India. As you know, India is a diverse country with different religions and culture. So, we are going to explore the beauty of North, South, East, and West. This story is about a young girl named Shana who travels across India with her parents and shares her experiences through postcards. This story highlights India's diverse climate, then about wildlife from the cold north, hot deserts of the west, to the wetlands of east and the rivers and beaches of the south. So let's start reading this story. So before reading the story, we have some of the activities which we have to do here. Let us do these activities before we read. So before reading the chapter, we are going to do these activities. Work in pairs, discuss the place that you have enjoyed traveling to, talk about who you went with, how you traveled, and what you learned from the experience. Now what you have to do in क्वेश्चन नंबर वन में हमें ऐसी प्लेस जो आप जहाँ पे ट्रैवलिंग आपने लास्ट करी है और आपका ट्रैवल कैसा रहा और आप किसके साथ गए और कैसा एक्सपीरियंस था वो सब आपने यहाँ पर लिखना है. ठीक है. सपोज आई हैव रिटन आई एंजॉयड विजिटिंग ऊटी विद माई फैमिली. We went by train and admired the green hills and tea gardens. I learnt about beautiful nature. ठीक है. तो ऐसे आप कोई भी प्लेस लिख सकते हो जो आपने रिसेंटली ट्रैवल की हो जहाँ पर. ओके. एंड यू हैव टू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. Which state or union territory of India do you live in? Write the following details about it. So आपने यहाँ पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी लिखनी है इंडिया की जहाँ पर आप रहते हो. ठीक है. एंड यू हैव टू राइट द फॉलोइंग डिटेल्स लाइक कि ये कहाँ पर है, कौन से पार्ट में है कंट्री के, नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर, उसकी कैपिटल, लैंग्वेज, रिवर्स जो यहाँ फ्लो करती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड फूड. So I have taken here, I live in Tamil Nadu. It is a state. Part, when we talk about which part, it is towards south side. Then the language part is Tamil. Capital city is Chennai. Then river that flow here is Kaveri. Tourist attraction Kanyakumari. Food idli sambar dosa. Okay. So you can write any country. Part of country you have to write here, means you have to mention a state or union territory of India you live in, जहाँ आप रहते हैं उसका आपने mention करना है और आपने part of country यहाँ पर लिखना है. नॉर्थ ईस्ट जो भी पार्ट है उसकी कैपिटल, लैंग्वेज, रिवर, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड फूड. Work in pairs, recall the names of the state of our country which have Pradesh in their names. Mention if it is in northeast, west, south or center of our country. Recall any special feature about each pradesh. Share your answer with your classmate and teacher. Now what you have to do, आपने अपनी जो country है उसमें जो भी स्टेट्स जिनके नाम प्रदेश, जिसके नाम के पीछे सेकंड पार्ट जो है वो प्रदेश है, वो लिखने हैं और आपने मेंशन करना है कि कौन सी पार्ट में है, ये नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, एंड उनका एक स्पेशल फीचर. फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, तो आई हैव रिटन हेयर हिमाचल प्रदेश. सेकंड पार्ट इज प्रदेश. कौन सी पार्ट में है ये भी लिखना है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ आई हैव टेकन आंध्र प्रदेश. अब हिमाचल प्रदेश कौन से पार्ट में है? इट इज इन नॉर्थ साइड. ओके. उत्तर प्रदेश नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, आंध्र प्रदेश साउथ. Then the special feature about Himachal Pradesh, it is famous for apples.
Uttar Pradesh famous for mangoes. Then Arunachal Pradesh famous for Brahmaputra river. Andhra Pradesh, it is famous for coconuts. Okay, so this way you have to write down and complete this table. Okay, you can write any other special feature also. Now let's read. We are going to read the chapter together. Shana, who lives in Rameshwaram Island. So what is the Rameshwaram Island? What is an island? So when we talk about island, island is a piece of land which is surrounded by water. So Shana lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of our country with her parents, exploring the many landscapes, people and culture of India. She shares her travel experiences through postcard that she writes to her friends back to school. Let us read these postcards. So what is happening here? शाना जो है वो कहाँ रहती है? रामेश्वरम आइलैंड में रहती है और वो ट्रैवल कर रही है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री, मतलब ऊपर नॉर्थ से लेकर, व्हेन वी टॉक अबाउट शी इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, देन साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट. इसीलिए लेसन का नाम जो है वो ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो वो इसमें क्या मेंशन हो रहा है कि वो ट्रैवल कर रही है, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है थ्रू पोस्ट कार्ड. और किसके साथ शेयर कर रही है? थ्रू पोस्ट कार्ड. एंड शी राइट्स ऑल दीज एक्सपीरियंसेस टू हर फ्रेंड्स व्हेन शी कम बैक टू स्कूल. Okay, so while she is traveling, she is writing everything, and then she come back and write all the experiences through postcard. So the first postcard is 30th April 2000. Hi everyone, you won't believe where I am. I am way up north. अब वो कहाँ पर है? नॉर्थ साइड में, सबसे ऊपर. एट द थजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर. अब ये ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर, let us find out what is glacier. Glacier is a mass of ice. Okay, so थजीवास ग्लेशियर, अब वो कहाँ पर है इस टाइम पर? ट्रैवल कहाँ कर रही है? नॉर्थ साइड में, थजीवास ग्लेशियर में, कश्मीर में. द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वेयर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. ग्लेशियर जो है वो कौन से कलर के हैं? वाइट और ब्लू कलर के हैं. और उनको क्या वेयर करना पड़ रहा है? 4 लेयर ऑफ क्लोथ. मतलब वहाँ इतनी ठंड है कि उनको 4 लेयर पहनने पड़ रहे हैं कपड़ों के. अपा एंड अम्मा लव इट हेयर एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर. और यहाँ पर वो इतने ज़्यादा हैप्पी हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, उसके फादर और मदर दोनों, कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक रहे हैं? स्नो बॉल्स. स्नो, वहाँ पर स्नोफॉल हो रखी है और वहाँ पे जो बॉल्स बनाकर एक दूसरे पे फेंकी जाती है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अ गेम. जैसे हम किसी गेम्स खेलते हैं तो वहाँ जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ भी क्या करते हैं? स्नो की बॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं. ठीक है, इट मीन्स दे आर एंजॉइंग एंड लविंग दैट प्लेस. बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर. पर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्नो थी, इस बार उससे कम है. आई ऑल्सो लाइक द स्नो बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स, सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर. तो शाना क्या बता रही है कि मुझे भी स्नो बहुत अच्छी लगती है पर मेरे हाथ जो है वो शेक कर रहे हैं. शेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ग्लव्स जो है वो पहने नहीं है, तो मैं इसलिए लिख भी नहीं पा रही. क्योंकि जब आपने भी नोटिस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है विंटर्स में, हमारे हाथ जो है ना वो शेक करते हैं, चलते नहीं है. क्यों? क्यों? ठंड की वजह से. तो इसलिए उसके हाथ भी ठंड की वजह से शेक कर रहे थे, इसलिए वो लिख नहीं पा रही थी. सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, लव शाना. ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट पोस्ट कार्ड है. अभी इस टाइम पे वो कहाँ पर है? वो अपना बता रही है कि मैं नॉर्थ में हूँ. एक ग्लेशियर जो है थजीवास ग्लेशियर है कश्मीर में, वहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ. और हमने बहुत सारे लेयरिंग कर रखे हैं क्लोथ्स के, बहुत 4 लेयर्स पहन रखे हैं. एंड वी आर इंजॉइंग. कैसे इंजॉय कर रहे हैं? स्नो बॉल्स एक दूसरे पे फेंक कर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पोस्ट कार्ड. लेट्स मूव ऑन फर्दर. 10 May 2000. Dear class, we took another train yesterday and reached Himachal Pradesh. It is very quiet and we can see so many mountains from our cabin. Colorful birds wake me with their chirping when the sun rises in the east. So now अब वो कहाँ पहुँच गई है? कश्मीर से अब वो पहुँची हैं हिमाचल प्रदेश.
अब हिमाचल प्रदेश कैसी जगह है? एक बहुत ही क्वाइट, शांत है, जहाँ पे माउंटेन्स नज़र आते हैं, कलरफुल बर्ड्स नज़र आती हैं और उनकी चर्पिंग से वो उठ जाती है। चर्पिंग क्या होती है? जो साउंड, शार्प साउंड जो बर्ड्स निकालती हैं, तो कलरफुल बर्ड्स जो हैं वो उसको आकर उठा देती हैं। व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब सन राइज करता है तो कलरफुल बर्ड्स आती हैं और उसको आकर चर्प कर करके अपनी आवाज़ से उसको अपनी साउंड से उठा देती हैं। I also think I hear bears growling in the west when it gets dark। और उसने हिमाचल में प्रदेश में और क्या देखा कि जो बियर्स हैं वहाँ पर वो ग्राउल करते हैं वेस्ट में जब रात हो जाती है। रात के वक्त उसको उनकी ग्राउलिंग जो है उनकी आवाज़ सुनाई देती है। बट अमा सेज दैट जस्ट अपा स्नोरिंग। बट उसको वो उसकी जो अमा है, उसकी जो मदर है, वो कहती है कि ये तो अपा जो है उनकी आवाज़ है, जैसे जो खराटे लेते हैं ना सोते वक्त, ठीक है, एक तरह की लाउड नॉइस निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्नोरिंग, खराटे लेना, ठीक है, मेकिंग अ लाउड नॉइज एज वन ब्रीथ्स वाइल स्लीपिंग, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? स्नोर करते हैं, हम खराटे लेते हैं। तो वो शाना को क्या लगता है कि बियर्स की ग्राउलिंग की आवाज़ है, बट उसकी मदर कहती है कि नहीं, ये पापा के खराटों की आवाज़ है। आई वुड लव मीट अ बियर एंड गिव इट अ हग। उसको बियर जो है वो चाहती है कि वो बियर से मिले, उसको उससे उनसे मिलना अच्छा लगेगा और उनको हग देना, मतलब उनके गले लगना अच्छा लगेगा। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना। तो अब दिस इज दी सेकेंड पोस्ट कार्ड। अब वो कहाँ पर है इस टाइम पे? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ उसने क्या देखा? एक तो वो प्लेस बहुत क्वाइट है, वहाँ पे माउंटेन्स नज़र आए, कलरफुल बर्ड्स नज़र आए, और वो देखती है कि जब सनराइज होता है उस टाइम पे बर्ड्स जो है अपनी साउंड से आकर, कलरफुल बर्ड्स उसको उठाती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि उसने बियर्स की ग्राउलिंग भी जो है रात के वक्त सुनी है। 17 May 2000. Hi everyone. Did you know that Arunachal Pradesh is far away from Himachal Pradesh? Himachal is in north, but Arunachal is all way in the east. I thought all the Pradesh states sat next to each other. So अब वो कहाँ जा रही है? अरुणाचल प्रदेश। वो अब वो बता रही है कि हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा सा दूर है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ में है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। पहले उसे क्या लगता था कि सारे प्रदेश जो है ना वो सारे इकट्ठे एक के साथ एक हैं, ठीक है। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। दिस मॉर्निंग वी वॉक्ड through a forest to reach our tree house. The forest here is so thick that if you blink or stop to tie your shoelaces, you will get lost. So वो क्या बता रही है कि 2 ट्रेन्स हमने ली, ठीक है, और उसके बाद हम लॉन्ग टाइम तक जो है ट्रेन में रहे। उसके बाद हमने ड्राइव करी, मतलब उन्होंने वहाँ से कार ली और वो एक फॉरेस्ट में गए जहाँ पर उनको एक ट्री हाउस नज़र आया। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ट्री पे एक हाउस बना हुआ है, ठीक है। तो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा घना है, इतना थिक है, इतना घना है कि अगर आप जैसे आंख भी झपकोगे ना अपनी, ठीक है, या फिर आप अपने शू लेस बांधने के लिए ज़रा सा रुकोगे तो आपको लगेगा कि आप उस फॉरेस्ट के अंदर गुम हो गए, वो इतना घना है। I love Arunachal the best so far and am beginning to enjoy myself. I hope we get to see red pandas. तो उनको लगता है कि वहाँ पर उनको रेड पांडास देखने को मिलेंगे, और वो कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक अरुणाचल प्रदेश जो है वो बेस्ट लगा, ठीक है। और अब उसने इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट पोस्ट कार्ड जो हमने बात करी थी वो क्या थी? कश्मीर, जहाँ वो गई थी। उसके बाद वो गई हिमाचल प्रदेश, सेकंड पोस्ट कार्ड में जो उसने बताया। एंड थर्ड वी हैव टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश। Next, 24 May 2000, dear classmate, it did not take any time at all to travel southwest and get to Sundarbans in West Bengal. Today, Amma and Appa took me out onto the river in a small boat. Amma tells me that places like Sundarban are called wetland. I never knew such a place existed, and that it was possible for trees called mangroves to grow in seawater. But Amma is sad about how much this place floods today. So now they are towards the west side. Where are they? They are in West Bengal, ठीक है, दे आर इन वेस्ट बंगाल। अब वो वेस्ट बंगाल पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने सुंदरबंस जो है वो, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जो है वो देखा है, ठीक है। अब वो कैसे गए हैं वहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल बोट। अम्मा एंड अप्पा जो है उसको रिवर के थ्रू, एक स्मॉल बोट के थ्रू वहाँ लेके गए हैं। अम्मा ने ये बताया कि सुंदरबन को वेट लैंड भी बोला जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो उनका क्या नाम है, मैंग्रोव्स है, जो सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस एरिया में फ्लड भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, एन एरिया ऑफ वेटलैंड, जो गीला होता है। ठीक है, ऐसा एरिया जो गीला होता है उसे वेटलैंड बोला जाता है। We also saw crocodiles and lovely snake while boating. I hope they don't follow us home. How is everyone? Are you missing me yet? Love, Shana. So अब वो बोटिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि स्नेक्स और लवली जो स्नेक्स हैं वो भी उसमें है, बट वो कहती है डर के लिए, डर की वजह से कि आई होप कि हमें फॉलो नहीं करेंगे घर तक। ठीक है। जैसे आप कभी बोटिंग पे जाते हैं या आप किसी रिवर के पास जाते हैं तो डीप अगर हम देखें, या कई बार होता है मतलब ऊपर ऊपर हमें कुछ फिशेज नजर आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनको बोटिंग करते हुए क्रोकोडाइल्स और स्नेक नजर आए। तो शी सेड कि ये मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये मुझे घर तक फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। सो नाउ शी इज इन वेस्ट बंगाल टूवर्ड्स द वेस्ट साइड। लेट अस रीड फर्दर। 30th May 2000. Hi everyone, we traveled across the country all the way from east to west, from West Bengal to Gujarat, and it took us 2.5 days. Okay, now she has come to Gujarat. अब वो कहाँ आई है, गुजरात। सबसे पहले वो कहाँ गई थी, कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन टू वेस्ट बंगाल एंड देन नाउ गुजरात। अब वो गुजरात आई हैं, उनको 2.5 days लग गए गुजरात आने में। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फ्रॉम ईस्ट टू, दे आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। I don't know why my amma and appa brought me to the middle of the desert. It's hot, dry and there's sand everywhere. तो अब वो जो एरिया है वो कैसा है, वो डेजर्ट में आई है। तो डेजर्ट एरिया कैसा होता है, डेजर्ट एरिया बहुत हॉट होता है और ड्राई होता है, सैंडी होता है। ठीक है। आपको वहाँ पे कैमल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ वाटर की बहुत कमी होती है, कैक्टस नज़र आता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चीज़ें उसको वहाँ नज़र आए। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। ऐसा बीच है जो जहाँ पे सी नहीं है, सैंड ही सैंड है। बट आई डू रियली लव क्लोथ्स है, यहाँ के जो क्लोथ्स हैं वो मेरे को अच्छे लगे। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। लोगों ने जिस तरीके के क्लोथ्स पहने हुए थे वो उसको वहाँ पे पसंद आया। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। अमा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%. लव, शाना। तो शी इज टेलिंग दी स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बता रही है कि आप सब अपने हॉलीडे होमवर्क में बिजी हो गए, क्योंकि हॉलीडेज चल रही हैं। यू कैन सी द डेट है, सो उससे पता लग जाएगा कि समर वेकेशन चल रही है। और अम्मा ने जो है एक सरप्राइज टेस्ट दिया जो उसने 88% से पास करा। 7 June 2000. Dear class, today was the best day ever. We drove east from the desert to the नर्मदा रिवर विच फ्लोज ऑल द वे इन द सेंटर ऑफ इंडिया। अब वो कहाँ आ गई है, सेंटर ऑफ इंडिया में, नर्मदा रिवर के पास। ठीक है। विच एंड इट टुक 6 hours, और उसको 6 hour लगे हैं वहाँ से जो है एक डेजर्ट से, गुजरात से आने में, मिडल में। ठीक है, नर्मदा रिवर के पास। In the afternoon, Amma, Appa, and I went rafting in the river, and you won't believe how wild and scary it was. ठीक है। अब वो राफ्टिंग कर रही है। राफ्टिंग क्या है, एक यू कैन से वाटर स्पोर्ट होता है। ठीक है, वाटर स्पोर्ट है यहाँ पे। तो द स्पोर्ट ऑफ ट्रैवलिंग डाउन अ रिवर इन अ एयर फिल्ड रबर बोट। ठीक है। तो ये राफ्टिंग की जाती है, एक बोट के अंदर होते हो आप लोग, और उसके अंदर रिवर में आपको ट्रैवल कराया जाता है। तो वो उसको बोलते हैं राफ्टिंग। ठीक है, रिवर के अंदर जाके। और ये कितना वाइल्ड और कितना खतरनाक और कितना स्केरी है। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम। उसको लगता था रिवर्स बहुत शांत होती हैं, बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। ठीक है, बट जैसे ही वो पास गई, उसने राफ्टिंग करी, तो उसको पता लगा कि ये तो बहुत फास्ट चलती हैं। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then. तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि और ज़्यादा पानी था और ये बहुत ज़्यादा, राफ्टिंग जो है वो बहुत डरावनी चीज़ है। I was fully wet by the time I was done, and Appa was so scared and he decided never to go to rafting ever again. I love the water so much and can't wait to go back. Your best friend Shana. तो वो क्या बता रही है कि मैं जब तक बाहर आई तो मैं पूरे तरीके से गीली हो चुकी थी, और अपा जो है वो इतना डर गए थे राफ्टिंग से कि उन्होंने सोचा कि वो आज के बाद कभी राफ्टिंग नहीं करेंगे। बट स्टिल शाना इज सेइंग कि मैं पानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
12 June 2000. Dear classmates, Amma and Appa are fast asleep and I should be sleeping too. But I just love looking out of the window. I think we are in the southwest part of the country in Goa. Now, where is she? Now, she is towards the southwest part, that is Goa. You won't believe how nice the plateaus look. There are so many hills. There are so many hills here and beaches too. So अम्मा एंड अपा सो रहे थे और जो शाना है वो विंडो से बाहर देख रही थी और उसको ये पता था कि वो अब कहाँ पर है, साउथ वेस्ट पार्ट में, इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में, गोवा में। और वहाँ से उसे प्लेट्यूज नज़र आ रहे थे, हिल्स और बीचेस भी नज़र आ रहे थे। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। तो काफ़ी टनल्स जो हैं वो यहाँ पर उसको नज़र आए। ठीक है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ टनल। Basically tunnels are it is a passage which is under the ground. Okay, so while going to such a place जहाँ जो हिल या माउंटेन पे है, तो ऐसी जगहों पे जाने पे हम टनल्स क्रॉस करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आई तो उन्होंने देखा ट्रेन जो है वो काफ़ी टनल्स के थ्रू जा रही थी। ठीक है, गोवा एक जो प्लेस है यहाँ पर उन्होंने हिल्स देखे, बीचेस देखी, प्लेट्यूज देखे, तो यहाँ पे काफ़ी टनल से ऐसा पैसेज था। ठीक है, आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर। पहले वो कह रही हैं कि मेरे को डर लगता था टनल से, बट अब वो डर उनका ख़त्म हो गया। Someday I wish we could all go on a tour of plateaus। वो विश करती है कि हम सारे इकट्ठे जो हैं वो किसी टूर पे जाएं और वो ऐसा हो जो प्लेट्यूज का हो। मे बी वेन वी आर इन क्लास 11, लव शाना। तो वो कह रहे हैं कि जब हम क्लास 11 तक पहुंचे तो हम किसी ऐसे टूर पे जाएं जो प्लेट्यूज का हो, सारे इकट्ठे। 17 June. Dear friends, I can't believe we are in the same state again. We traveled south and I will be home soon. We reached Chennai yesterday and on the way to Puducherry, we decided to learn how to surf. Now, what is surf? Surf again is a water sport. ठीक है, a water sport that involves standing on long lighted board and riding a wave to the seashore. आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक क्या है, आप अगर यहाँ पे देखो तो ये एक आपको बोर्ड नजर आएगा, इस बोर्ड पे खड़े होकर आपको क्या करना है, राइड करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्फ। सो अब वो यहाँ पर क्या बता रही हैं कि वो कह रही हैं कि अब हम जो है कहाँ पर हैं, अब हम चेन्नई में हैं, साउथ में हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम पुडुचेरी में जो है यहाँ पे सर्फ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाटर स्पोर्ट जो है वो इसको वो वाटर स्पोर्ट को यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, I think I am good at it now because I only fell down twice। ठीक है, इतना ट्राई करने के बाद वो 2 बारी गिरी तो उनको लगा कि मैं इसमें अच्छी हूँ। अमा एंड अपा splashed water on each other and behaved like children। ठीक है, तो वो क्या किस तरह बिहेव कर रहे थे, चिल्ड्रन की तरह बिहेव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा, जब वो कश्मीर वाली लाइन आई थी तो कश्मीर वाली लाइन में भी उन्होंने ये बताया था पोस्ट कार्ड में कि एक दूसरे पे स्नोबॉल्स फेंक रहे थे। अब यहाँ पर अम्मा और अपा क्या कर रहे थे, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी फेंक रहे थे दूसरे के ऊपर। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। और उसने कहा ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, और आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम, और मैं वहाँ थी कि मैं उनको जो है वो कंट्रोल कर सकूं। राइट, the beaches here are not like the ones we have on our island. The waves are not rougher and the water is browner, but I still like it here। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रही है बीचेस जो हैं वैसे नहीं है जैसे कि हमने आइलैंड पे देखे, यानी कि जो हमने गोवा में देखे वैसे नहीं है यहाँ पे बीचेस। पर हाँ ठीक है, वेव्स इतनी वेव्स भी जो हैं वो थोड़ी सी रफ हैं। ब्राउनर मतलब एक ब्राउन कलर जो हम रेड, येलो और ब्लू को मिक्स करके बनाते हैं, तो जो वाटर है वो थोड़ा ब्राउनिश, मतलब एक मडी टाइप है। ठीक है, क्लियर वाटर नहीं है। ठीक है, बट वो कह रही है स्टिल मुझे ये जगह अच्छी लगी। 22 June. Hi everyone. I just crossed the Pamban bridge. I could see the ocean on both sides. How amazing that a train can travel across the sea like this. I'm almost home and I can't wait to give you my final letter in person. Love, Shania।
So she has come now to the Pamban Pamban Bridge. What is Pamban Bridge? Pamban Bridge is basically, it is not built on any of the river. It is the connecting point of the island of Pamban, and where actually शी वॉज रिसाइडिंग, उस प्लेस पर ही ये बना हुआ है। मतलब ये बीच में बना हुआ है इंडिया के मेनलैंड और आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, जहाँ पे वो रहती थी। तो ये जो ब्रिज है ये किसी रिवर पे नहीं बना, बल्कि ये उसको क्रॉस करने के लिए बना है, इंडिया के मेनलैंड को, और जहाँ आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, जहाँ पे शाना रहती थी। तो अब शी हैज़ क्रॉस दिस ब्रिज एंड आई कुड सी द ओशन, बोथ दोनों तरफ ओशन नज़र आ रहे हैं उसको। ठीक है, हाउ अमेजिंग। उसको वो ये लग रहा है कि एक ट्रेन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, और उसको मतलब अक्रॉस द सी को क्रॉस करके ट्रेन जो है वो ट्रैवल करके आ रही है। अब नाउ शी हैज़ कम टू होम एंड शी इज सेइंग दैट मुझे जो फाइनल लेटर देना है मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकती। 24 June, dear classmate, I thought Amma and Appa would be tired from all our traveling, but we made one last stop at the ओलाईकाडू बीच बिफोर वी रीच्ड होम। अब वो घर पहुंचे उससे पहले उन्होंने जो है एक जगह और वो रुके, वो कौन सा? ओलाईकाडू बीच। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव। ठीक है, अब वो इस बीच पे क्यों रुके? क्योंकि उसकी जो अम्मा है वो उनको सिखाना चाहती थी कि डाइव कैसे करते हैं। डाइव क्या है? स्विम अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ये डाइविंग हो रही है नीचे यहाँ पर। ठीक है, आप पानी में देखो, नीचे डाइविंग हो रही है। सो अम्मा जो है उनको ये सिखाना चाहती थी कि पानी के अंदर नीचे जाके किस तरीके से डाइव करते हैं। ठीक है, और जब हम नीचे जाते हैं पानी के, तो हमें हमारे अंदर वो ब्रीदिंग स्पेशल ब्रीदिंग स्किल्स होनी चाहिए, तभी हम नीचे जो है आराम से सांस लेकर हम डाइव कर सकते हैं। बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स ऑफ माई साइज, सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश वाइल माई पेरेंट्स डोव बिलो मी। ठीक है, वो कह रही है मेरे साइज का जो है वो डाइविंग सूट नहीं था, इसलिए मैं ऊपर ऊपर ही रही और फिशेस देखती रही, और मेरे पेरेंट्स जो है वो नीचे डाइव कर रहे थे। We found all sort of pebbles on the beach and I can't wait to give them to you in person tomorrow. ठीक है, उसने बहुत सारे पेबल्स, मतलब छोटे छोटे जो है वो पत्थर देखे, और वो कहती है कि मैं इसको वेट नहीं कर सकती कि तुम्हें ये मैं कैसे और कब दूँ। राइट, योर बेस्ट फ्रेंड शाना। 25 June 2000, dear Amma and Appa, I can't believe we traveled across the whole country. I know we are going to miss visiting the forests, glaciers, deserts, wetlands, plateaus, and mountains. And we are going to miss hearing all those new languages and meeting all those different people. But we are finally home now and we can join our friends again. So, शाना जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए, अम्मा और पापा के लिए लिख रही है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि हमने पूरी कंट्री जो है वो ट्रैवल कर ली। ठीक है, पूरी कंट्री कौन सी? इंडिया। उसने पूरा ट्रैवल कर लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और वो कहती हैं कि मैं फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट, वेटलैंड्स, प्लेट्यूज, माउंटेन, इन सब चीज़ों को मिस करूँगी। और हम ये भी मिस करेंगे कि हमने न्यू लैंग्वेजेस सीखी, नए लोगों से मिले, अलग अलग तरह से बातें करी। ठीक है, अलग अलग लोगों से मिले, और फाइनली अब हम घर वापस आ गए हैं और अपने फ्रेंड्स से दोबारा से मिलेंगे और उनको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। सो वो कहती हैं कि मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हम दोबारा ट्रैवलिंग करेंगे और वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद, और नेक्स्ट टाइम हम अपने फ्रेंड्स को भी साथ में ज़रूर लेकर जाएंगे। विद लव, शाना। सीजी सलामदा। So with this, we have come to the explanation and of the explanation of this chapter. I hope you have understood this chapter. I was being asked through your valuable comments to start over again with the standard 7th English, Science and Hindi videos. So I have come with the class 7th English video. So I hope you have understood this story. This story showcases the incredible variety of landscapes, climates and cultures
found across India, as India is a diverse country. And we are able to know this with the help of a young girl named Shana who travels across India with her parents, and she is sharing her experiences through the postcards. Okay, so I'll see you soon now in the next video with the back exercise of this chapter. So up till then, take good care of yourself. See you all soon. Thanks for watching.